Hi guys, today I have with me Vidyanshu Shekhar Jha, All India Rank 59, UPSC CSE 2024. After failing three prelims back to back, Vidyanshu backed the Danix service in UPSC CSE 2022. एक साल बाद in 2023 he was All India Rank 5 in Indian Forest Service and उसके बाद 2024 में Vidyanshu has banked All India Rank 59 and he'll be getting into IAS. Vidyanshu connected with me in 2024 for mentorship of his mains, specifically for the essay paper. And Vidyanshu says that this mentorship has helped in multiple ways. And he gives special reference to the live interactive and dialectical sessions that we had on Zoom, the templates and frameworks that we had discussed during our sessions, the macro and micro structuring of essays that we had discussed, elements like thesis formation, deconstruction of topic, and other hand-holding support that he says that he found useful. In this session, Vidyanshu will be sharing critical insights and learnings from his 6 years of experience, failing three prelims, then bagging three ranks in 3 different years, so back to back successively, so that these learnings will help you prepare more efficiently, avoid blind spots in your own preparation, and maximize your chances of cracking the examination in earlier attempts, possibly in the very first attempt. So, over to you, Vidyanshu. Thank you, sir. So, hello guys, I'm Vidyanshu Shekharja. Presently, I'm in Indian Forest Service and doing my training at Dehradun. This time I've secured, like sir mentioned, 59th rank, and probably by August I'll be joining IAS training. And before this, I was in Danix. So here, I just wanted to share. I have always told sir that, sir, I want to give back something to the community. Whatever I have learned in my journey of both failures and success, whatever I have learned, those things I would like to share, and I would like to use your institute as a platform from where I can probably send my message. So this session would be more like whatever I learned both in my success and failures, those things I would like to share. So see, first of all, I would say ki some basic things about how I proceeded. Then we will talk individually about prelims, mains, and everything. But first of all, my philosophy behind this exam, I would say. See, one thing I will suggest all of you कि don't jump into this preparation just because somebody told you कि कभी कलेक्टर की लाल बत्ती वाली गाड़ी देख ली अब यार हमें भी बनना है. That passion should come from within कि ठीक I have to crack. You know, this exam will take minimum 2-3 years. Even at the least it will take. Process itself goes for 1 year. ठीक है, एक साल तो prepare करोगे, so minimum 2 to 3 years it will go. So वो 2-3 years वो लाल बत्ती वाला चार्म नहीं तुम्हें पुश करेगा, वो अंदर से वो होना चाहिए कि I have to fight, I have to become. So see, in my case, it was like ever since the school days, I was very keenly interested in reading about defense, reading about economy, reading about IR. So, matlab, you can say almost 30-40% of UPSC syllabus was my core interest actually. So, when I was following this, I was not uh, punishing myself कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं. I was actually following my interest. ठीक है. So, एक thing ये मैं बोलूंगा कि follow your core interest in life. ठीक है. There is this saying कि love what you do and you don't have to work for one single day. So Hmm. although for me it was like long 6-7 years, but still I never felt कि इतने साल कब बीत गए, because every day I enjoyed. ठीक है, that failure was tough part, but still I enjoyed my preparation. So that is one thing. Secondly, I would say कि you should encash on your strength, where your strength lies. देखो यार, for me, I realized in my school and college days that descriptive writing is my strength. Whenever you give me long descriptive answers, I can write very good answers in very good speed with very good handwritings. मेरे को often अपनी handwriting के लिए अलग से appreciation मिलता था, and I was very comfortable writing those answers. So मैंने सोचा कि when my interest lies with syllabus, my natural strength lies in very long answer writing, then probably I should go for civil services. And needless to say, this is such a prestigious job. So that is first thing that I will tell you कि अपने स्ट्रेंथ को फॉलो करो. सी, इवन आई कुड नॉट क्लियर आईआईटी जेई. ठीक है, तो शायद मुझे इतना मजा नहीं आता था मैथ साइंस में, ऐसा नहीं था. मैंने प्रूफ तो कर ही दिया कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, 59th रैंक ले आया, 3 बार यूपीएससी क्लियर कर दिया. बट दैट वाज नॉट समथिंग आई वाज आईआईटी जेई की, जिसमें शायद मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं होगा. तो बेवजह हर चीज में मत कूदना. आप जेन्युइनली अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो. दिस इज फर्स्ट मैसेज आई विल गिव यू. सेकंड, मेरे साथ था कि माय फैमिली very strongly stood behind me all these years of failure. I told them कि I'm not going to appear
prepare for any exam other than UPSC, and still they backed me up. Although I won't suggest this strategy. ये मत करना, it was very risky. Thank God I cleared. Give one or two attempt to UPSC, and if you don't clear, go for some other exams, state PCS, RBI, NABARD, go for them as well. So those were few things. And probably in this exam, luck is certainly a factor. Luck to chahiye, otherwise नहीं होता. So I'm very, very grateful to God for where I am. And even in my UPSC, they asked me, you are in forest service, this, that. So I said, sir, I'm very grateful to God for where I am. And even if I remain here, I will still remain very grateful to even the Honorable Commission. कि मैं कहाँ पे हूँ. And in this exam, be really grateful to UPSC कि you are getting chance to become a learned person. So this time in interview, I had Sanjay Verma sir board. He is a retired Indian Foreign Service officer. So in the last question sir asked me was that, Vidyanshu, this is your third interview. I said, no, sir, this is my fourth interview. Two in civil services, two in forest services. So this is my fourth. So sir said me, Vidyanshu, you compare your first and this interview. So I said, sir, when I came here for the first time, I was really scared. I did not have much hopes. Mera first mains tha and all. Today I'm coming with two services under my belt, already been recommended twice. So now I have confidence. I don't have much fear. But one thing that has remained constant is that my gratefulness towards the Honorable Commission. The first time I came here, I did not have much hopes of getting a service because that was my first means. Although by God's grace, I got into Danix, but I did not have hopes. But even that day, I was very happy that for me as a student entering this building to appear for interview, that in itself is a great honor. That as a student, I'm here. So I told this thing to sir. Sir, even that day, I was very grateful to God. And I was very sure that even if I don't get a service, I will still hold my head high as a student at least. And then I told him, sir, that was my first interview experience. I did not, in my understanding, I underperformed, but still I got very good marks and I got into a service. Today that I come here, sir, after two services, sir, I still feel very grateful to the God, to even this institution, that I have today come out as a very learned person. This journey has taught me perseverance, courage, humility, and I have become friends with few of the finest individuals of this country. They are my batchmates, my friends. So I couldn't be more grateful to the Honorable Commission, and it was true honor of my life. Those were my last words. So in the end, sir said, it's good, but as an officer, your journey has just started. So remain humble, remain grounded, always help people like that. So you see, I was just being honest. I honestly conveyed my feelings to them. So ये मैं बोलूंगा कि don't take this as a punishment कि अरे यार कर रहे हैं क्या होगा. Be grateful कि आपको बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने का मौका मिलेगा, आप इतने लर्नेड इंसान बन पाओगे. सो वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए. सो दैट इज सम फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर जनरली स्पीकिंग. एंड इनफैक्ट मेरी मम्मी एक बात बोलती थी कि जब ओखल में सर दिया तो मुसल से क्या डरना, ओखली जिसके अंदर वो आप कूटते हैं. अब जब आपने ओखली के अंदर खुद ही सर डाला है, जो हम बोलते हैं आ बैल मुझे मार तो जब आपको उसके अंदर सर डाल दिया तो फिर कुटाई से क्यों डरना. उस चीज से आपको पता है कि ये ऐसा ही प्रोसेस है. सो डरना नहीं है, डोंट गिव अप. दीज आर फ्यू थिंग्स. और एक कोट है मेरे लाइफ के बहुत क्लोज है. एवेंजर्स मूवी में एक थॉर की माँ ने उनको बोला था कि लुक थॉर, ऑल ऑफ अस फेल एट हु वी आर सपोज टू बी. ठीक है, बट द ट्रू वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ हीरो, इज हाउ विल यू सक्सीड एट बीइंग हु वी आर. सो आप जो हो, एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शन और उसी पे वर्क करो कि ठीक है मैं ऐसा हूं तो हूं. हम एक आइडियल वर्जन सोचते हैं कि यार उस दुनिया में ये हो जाता, हम ये कर देते, वो कर देते. मत सोचो, आप जैसे हो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज योर इम्परफेक्ट वर्जन एंड वर्क अपॉन इट. ठीक है. True. So that is why she said. ठीक है. So that is some basic thoughts. और family throughout बहुत साथ रही, so I'm very grateful to them. और now coming to the first part of this exam, prelims part. ठीक है. सो प्रीलिम्स आई विल से कि आई हैड दिस रॉन्ग नोशन कि अरे ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा. मे बी रियल कंपटीशन लाइज इन मेंस एंड इंटरव्यू. सो आई नेवर रियली गेव ड्यू एम्फेसिस टू इम्पोर्टेंस टू प्रीलिम्स. मुझे को लगा ठीक है, ये तो ऐसे ही बच्चों वाला स्टेज है. ठीक है. सो and as it happened, I failed prelims three times in a row. So I learned it a harder way कि ठीक है ये बच्चे वाला स्टेज नहीं है, एक्चुअली ये सबसे टफ स्टेज है इस एग्जाम का. मे बी देयर आर सम स्टूडेंट्स हु क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम, देयर आर सम हु क्लियर मेंस एवरी टाइम. सबका अपना अपना होता है. बट if you see stats, only 1 to 2% people will clear prelims. So even going through the stats and probability, prelims is the toughest stage. और एक बात मैं आपको अभी का बताता हूँ. This 2024 prelims exam. So while entering the exam hall that day, I was someone who was already selected twice, first in Danix and then in Forest Service. And both these years I had cleared Forest cutoff as well. So those of you who don't know, Forest cut and CSE have common prelims, and Forest Service cutoff is 15-20 marks more than CSE cutoff.
So both in 2022, 2003, I had already cleared for even forest cutoff. Both the years I got recommended for two different services. मैं चाहता तो 2024 में बहुत सीना चौड़ा करके घुसता एग्जाम हॉल में, करे मैं तो ऐसे ही फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाल दूंगा, मैं तो दो दो बार सेलेक्टेड हूँ. बट while entering the exam hall, I clear my mother was outside. I told my mother कि मम्मी बाहर किसी भी पेरेंट को मत बताना कि मेरा बेटा सेलेक्टेड है. कुछ मुझे पता नहीं मेरा प्री निकलेगा कि नहीं. तो बाहर अगर कोई पेरेंट मिल गया एग्जाम के बाद और फिर मेरा प्री नहीं निकला तो बेकार की इंसल्ट हो जाएगी. तो दिस वाज माई, हम कैंडिड एडमिशन की, हो सकता है मेरा ना निकले, हो सकता है सीएससी का ही कट ऑफ ना निकले, जो मैं फॉरेस्ट निकाल के बैठ रहा हूँ हो सकता है सीएससी भी ना निकले. सो प्रीलिम्स इज लाइक दैट, ठीक है. यहाँ पहले भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस थे प्रीलिम्स को लेकर के, एंड स्टिल इवन ऑन दैट डे आई वाज नॉट वेरी श्योर. एनीवेज, सो वो आप रहना. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन की. So my journey was like, first prelims I failed by 2 marks. ठीक है. Second prelims I failed by 0.67 marks. And third prelims I failed by 1 mark. तो हर टाइम था कि आई वॉज ऑलमोस्ट देयर बट स्टिल नॉट गुड इनफ, एकदम होते होते रह गया. सो फर्स्ट आई विल शेयर माई बेसिक स्ट्रेटजी की मैंने क्या क्या किया था, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट गुड इनफ. ठीक है. सो इट वॉज लाइक कि सेम बुक्स इन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, इन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इन इकोनॉमिक्स मृणाल वीडियोस, इन इन्वायरमेंट शंकर आईएएस. ठीक है. एंड देन फॉर करंट अफेयर पीटी 365. और वन थिंग आई डिड वाज कि आई मेड लॉट ऑफ notes from mock test. So I used to give 80-90 mock test in those years. ठीक है. और वो मैं करता था, and after that I used to make notes. So that was one thing. But in this zeal, and because I was doing coaching also, so I neglected newspapers largely. Also, because I was doing too much of test series, I could not do previous year question paper, because see, 80-90 test series will require a lot of time and effort, and especially when you are making notes out of them. So उसके चक्कर में मेरा पीवाई क्यों नहीं हुआ. Similarly, ancient medieval art and culture is something I could not do. और एक चीज थी दिमाग में घुसी रहती थी कि यार अटेम्प्ट बढ़ाना है, 90 करने हैं, 92 करने हैं. सो अगेन, अटेम्प्ट इज अ पर्सनल थिंग, एवरीवन विल हैव देयर ओन स्टाइल, बट मैं ये कर रहा था. एंड देन आई केप्ट फेलिंग प्रीलिम्स. सो इवन प्रीवियसली आई टोल्ड जीशान सर कि सर जब मेरा तब नहीं हुआ ना 0.67 के बाद, जब 0.67 से मेरा मिस हुआ, सो मुझे वो प्रीलिम्स फेल होने का दुख नहीं हुआ. वो मैं मेंटली रेडी था कि ठीक है, इट इज अ लॉन्ग जर्नी, इट विल टेक टाइम, आई मे फेल. उस दिन मेरे को हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही थी कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी मैं क्या कर लूंगा, और वो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि यार ठीक है, पिछली बार 2 नंबर से नहीं हुआ, 0.67 से नहीं हुआ, तो अगली बार भी मैं ऐसा क्या कर लूँ. मे भी चलो अगली बार 1 नंबर आ भी जाए, पर मैं श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स कैसे निकालूं. तो मैंने सर को पहले भी बोला था कि सर वो हेल्पलेसनेस मुझे बहुत खराब लग रही थी. मैं फेलियर को एक्सेप्ट करने को तैयार था, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी ऐसा क्या कर लूँ. सारी बुक पढ़ ली, सारे टेस्ट सीरीज लगा लिए, सारी कोचिंग की मैगजीन कर ली, अब क्या करूँ एक्स्ट्रा. सो देन सम चेंजेस दैट आई मेड इन माय प्रिपरेशन. सो आपको बेसिक तो मैंने बता दिया, बेसिक वही है, वही फाउंडेशन है, सब वही करते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड आई वाज ऑलमोस्ट गुड टू क्लियर prelims every time. But there are some changes that I made from 2022 onwards. So 2022 में फर्स्ट थिंग दैट आई डिड कि मैंने अपने सोर्सेज को लिमिट किए. सो देयर इज दिस कोचिंग ओनली आईएएस, एंड दे हैव दिस बुक उड़ान. सो उड़ान क्या है कि से मॉडर्न हिस्ट्री हम वो पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम से. स्पेक्ट्रम से 600-700 पेजेस बुक. मेरे 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो गए थे. आई वाज वेरी थरो विद स्पेक्ट्रम. सो उड़ान वाज लाइक नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम इन 100-120 पेजेस. तो मैंने उसको उसको ही फिर से पढ़ा, क्योंकि 3 साल स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद चौथे साल फिर से उसी बुक को पढ़ना, वो बहुत मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है. सो आई डिड उड़ान. उड़ान की मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी, उसी की मैंने पॉलिटी भी पढ़ी, उसी के इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट पढ़े. तो 100-120 पेज की बुक है. जो मैंने पास्ट में बुक पढ़ी है, उन्हीं बुक्स को उन्होंने लाइन बाय लाइन उठा के अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, थोड़े और सिस्टमेटिक करने. तो एक तो मेरे को बहुत ढंग से मेरा रिवीजन हो गया, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया, और चीजें आती ही थी. सी आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप यूएस के लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, दोज आर फंडामेंटल बुक्स एंड यू मस्ट डू. मैं बस ये बता रहा हूँ मैंने क्या किया था लेटर अटेम्प्ट में, नॉट इन प्रीवियस अटेम्प्ट. प्रीवियस अटेम्प्ट में दिस विल बैकफायर, यू मस्ट प्रेफर ओरिजिनल बुक्स. ठीक है. एंड द बेसिक आइडिया कि मैंने अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखा, उसको ही बार बार पढ़ा. सो फॉर एग्जाम्पल दिस उड़ान ऑफ एनवायरमेंट, जब मेरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की इंटरव्यू थी, तब भी मैं वही एनवायरमेंट वाली बुक पढ़ के गया था अपनी इंटरव्यू के लिए. इवन दो फॉरेस्ट का इंटरव्यू है, वो पूरा एनवायरमेंट ही पूछेंगे. जब इस साल मैं इंटरव्यू देने गया, आई एम एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, आई न्यू कि मेरे से पूछेंगे वही, और मेरा 3/4 इंटरव्यू फॉरेस्ट सर्विस के अराउंड ही गया, तब भी मैं वापस से वही उड़ान अपनी पढ़ के गया था. सो लिमिटेड चीज को बार बार पढ़ो, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, बीट इंटरव्यू. इस एग्जाम में कोई ऐसे मैजिक नोट्स नहीं होते हैं, कोई ऐसा टॉपर नोट्स नहीं होता. होता क्या है कि आप अपने कंटेंट को लिमिटेड रखो, उसको बार बार पढ़ो. 30-40-50% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट लिमिटेड कंटेंट, तो वो आप अच्छा लिखोगे. एंड द अदर क्वेश्चन दैट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम देयर, बिकॉज यू हैव सो मच
गुड कमांड ओवर दैट बेसिक स्टफ, तो आप दूसरा आंसर, अननोन क्वेश्चन के आंसर भी इतने अच्छे से कर दोगे ना कि वहां पे रिलेटिवली यू विल बी बेटर ऑफ इन कंपटीशन. सो ऑल इट बॉइल्स डाउन के टू द फैक्ट कि लिमिटेड चीजों की मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए आपके पास. सो मुझे याद है 2022 का जब प्रीलिम्स आया, सो इन 4 आवर आई वॉज एबल टू रिवाइज एवरीथिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट. मैंने उस बुक को इतनी बार रिवाइज किया हुआ था. मतलब 100-120 पेजेस की बुक थी. एवरी पेज आई हैड हाईलाइटेड, अंडरलाइंड, annotated, written something from my pen. So basically that 120 page was reduced to like 50 to 60 pages effectively because I had highlighted and underlined things. तो सब कुछ नहीं पढ़ना था. So अब आप 60 पेज देखो तो इफेक्टिवली आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो. 1 मिनट पर पेज इज मोर देन इनफ फॉर रिविजन. तो मैंने 5 घंटे में तो मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया है. मेरी इतनी इफिशियंसी आ गई थी लास्ट लास्ट में. सो लिमिट योर थिंग्स. आप कोई भी बुक पढ़ो, इट इज ओके. यू रिफर टू एनी कोचिंग मटेरियल, दैट इज ओके, बट यू डू इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, ऑल कोचिंग मटेरियल, ऑल नोट्स आर इक्वली वैलिड. ठीक है. सेकंड थिंग दैट आई डिड वाज कि Here, करंट अफेयर आई वाज I डूइंग. would just paraphrase what you have said for the understanding, better understanding of our students. आपने ये बताया है कि किताब कोई भी आप रेफर करो, फेज्ड रिवीजन एंड अल्टीमेटली कंडेंसेशन ऑफ द कंटेंट. आखिरी में आप जब बोल रहे हो कि एक्स नंबर ऑफ पेजेस में आपने उसको उतार दिया था, सो मल्टीपल रिविजन्स आप कर पाओगे तो उसी तरीके से कर पाओगे. और क्योंकि आपने वो खुद नोट्स बनाए हैं, एनोटेशंस बनाए हैं, आप उसको उसके साथ बेटर कनेक्ट कर पाओगे. राइट. सो रिविजन वाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट. यस Mitanshu. So second thing, I would say कि previously I was doing only PT 365, but PT 365 does not cover newspaper holistically. ठीक है. तो that very year उसने उस साल मैंने क्या किया था कि newspaper I did religiously, one thing. Second thing was कि शून्य IS that year came up with some current affair compilation जहाँ पे वो लोग थोड़ा और घुस के द हिंदू वगैरह से नोट्स निकाल रहे थे. So that thing I used and it helped me in 4-5 questions at least. So again, it is up to you what you want to do, what you don't want to do. I will just share what I did. ठीक है. So that helped me actually in 4-5 questions. ठीक है. Probably the most important thing that I did was कि I reduced my mock test to 30-40, which is supposed to be reasonable thing. Or because it had been so many of years of experience, so 30-40 tests were enough. But what I did was I did 10-year previous year question religiously, very religiously. In the past attempt, I did not do PYQ. So in the past attempt, when I was even attempting 80-90 mock questions, mock test, in the exam hall, I was struggling करे ये क्या पूछ दिया, अब इसका क्या करूं, because मैंने यूपीएससी के पेपर नहीं बनाए थे कभी. ठीक है. So when you do past year paper, first thing that is there is you will understand language of examiner कि किस तरह के स्टेटमेंट राइट होते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट मिसलीडिंग होते हैं, कहाँ पे वो ऑप्शन स्वैप कर देते हैं. दीज थिंग्स आर यूनिक टू यूपीएससी. ठीक है. सो द मोर यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, द मोर यू विल गेन दीज स्किल्स. जीशान सर एंड आई हैव अ वीडियो ऑन प्रीलिम्स सेशन, यू कैन चेक सर्स चैनल. वहां पे मैंने बहुत डिटेल में वो अपनी स्ट्रेटजी और क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने डिकोड किया कि कैसे करना है. सो यू प्लीज refer to that video. The scope of this video is to cover the overall journey, so I will not go into question paper. उस But वीडियो का लिंक ऐड कर देंगे first हम up, description में. जी जी, यस सर. या सो आपको वो लैंग्वेज समझ में आएगी एग्जामिनर की. पास्ट में मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, तो मैं हर क्वेश्चन को प्योरली नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करा था पास्ट अटेम्प्ट में. तब इतनी मेहनत के बावजूद मेरा नहीं निकल रहा था क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को नॉलेज के बेसिस पे बना रहा था. नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आई एक्चुअली अंडरस्टूड लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनर. जैसे नहीं, अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो तो वी नो कि व्हेन ही इज लाइंग, व्हेन ही इज बीइंग ऑनेस्ट. ठीक है. हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमने उसके साथ जिंदगी बिताई है. हमारे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, तो माँ बाप एक दो समझते हैं कि बच्चा कब खुश है, कब दुखी है. सो द मोर यू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, द मोर यू विल रियलाइज कि एग्जामिनर का क्या इंटेंट है. सो अनफेमिलियर क्वेश्चन भी आप कर लोगे. और ये बहुत सिंपल सा कंपटीशन है यार. 2-4 क्वेश्चन का आगे पीछे का खेल होता है. 4 क्वेश्चन किसी के एक्स्ट्रा सही हो गए, वो 10 नंबर ऊपर चला गया, कोई 10 नंबर नीचे चला गया. ठीक है. सो दिस थिंग हेल्प्स immensely. Second thing, 4 to 5 question you can expect every year that will be repeated, if not word by word, then indirectly maybe. ठीक है. तो again, the moment you fail to get these 4-5 questions in correct, you will lag behind in competition. यहाँ पे आप lose नहीं कर सकते. It is okay to not know some random treaty, some random organization, some random flower का name. It is okay to not know these things. But ये जो 4-5 question PYQ से आए हैं, if you are failing here, then you are falling behind in competition. Similarly, the more you do PYQ, you will realize that there are certain important themes that will be repeated. Say, map of Middle East, Jordan, Israel, Mediterranean. So many times UPSC has asked this map. Question on, say, money bill. Almost every other year there will be a question on money bill. ठीक है. President का election. ये सब. So you will realize कि कौन कौन से areas are important. Rather than running after everything, trying to study everything, you will realize कि कहाँ पे prioritize.
Another area that I did was mapping part. So mapping, we often confuse it with geography, but mapping is not just confined to geography. Needless to say, you have to do geography. Apart from that, in environment, you need to do national park, wildlife sanctuary, tiger reserve, Ramsar sites. Okay, so in 2000, I think it was 2020, at least 780 questions came from this national park, wildlife sanctuaries that year, and even birds and that thing. So you need to understand that this is one area where UPSC is interested in. And then another mapping would include places in news. So you can go through magazines like PT 365 IR magazine. So it includes places in news. Okay? Or say like this year, UPSC asked, again going on PYQ themes, UPSC asked about कि वो क्या बोलते हैं इंटेंजिबल यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज टैग किसको किसको मिला हुआ है कौन सा साइट पे सो यू शुड हैव एन आइडिया कि देखो यूपीएससी इज आस्किंग सो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट शुड यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस टॉपिक ठीक है या एवरी टाइम दे आर आस्किंग अबाउट आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 सो यू शुड नो कि ठीक है यार दिस इज दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज these questions are getting repeated almost every other year ठीक है and one area another area that I did was ki in 2022 I observed that in last few years UPSC was asking 2-3 questions from agriculture. So what I did was I just went to Google and downloaded some coachings random compilation of agriculture. तो वहां से थोड़ा बेसिक वगैरह पढ़ लिया था. And one very critical area that I did, very important, like I told you previously, in past year I was not doing ancient medieval art and culture, and you will see every year 5 to 10 questions are coming from ancient medieval art and culture. 5 to 10 questions. They are usually difficult. Most candidates would get only 3 to 4 correct. So मेरा था कि if I solve this area and if I get additional 2 to 3 questions, that is additional 4 to 6 marks. And every year I was failing just by these 1-2 marks only. So this is one area I worked upon. So ancient medieval के मैंने बहुत कायदे से notes बनाए. The source I referred was Shunya IAS online coaching, and those notes I've already shared with Zishan sir on his. Yes, sir has on his Telegram channel. I have already shared in the past. If sir say, I will share it again. Okay, so you can have those notes. So again, my expectation from notes was very clear. If 10 questions are coming from this area, 3-4 anybody anyway I will be able to solve, but my notes will help me to probably solve another 2-3, and that is what will create difference. I was never expecting कि मेरे को 10 में से 10 आते हो, कभी नहीं था. So this thing, and another thing I did was कि इन द पास्ट ईयर्स मुझे मतलब वो रहती थी कि मुझे 90 अटेम्प्ट करना है, 92 करना है अटेम्प्ट बढ़ाने. दिस टाइम आई वाज बीइंग वेरी रैशनल कि पास्ट में मेरा वो नेगेटिव की वजह से ही कट जाता था. सो दिस टाइम आई विल मैं वही अटेम्प्ट करूंगा विच आई आइदर नो और आई एम एबल टू लॉजिकली रिड्यूस समथिंग और आई एम एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस. वही करूंगा. सो माय अटेम्प्ट वेंट डाउन टू 79 in 2022 and I scored 120 marks. That year CSE cutoff was 88, forest cutoff was 103 and I got 120. So at this point I was very clear कि आज मैं तुक्का मार के नहीं आऊंगा. तो these were few changes that I made. Also, one more thing, the last part would be mindset on day of prelims exam. देखो यार, don't have unrealistic expectations from yourself. ठीक है. I suffered this setback in my initial attempt. So like I was telling you, okay, in the initial attempts I read all the books, read all magazines, did 80-90 mock test. उसके भी notes बनाए mock test के, वो भी revise करके गया. And I was doing really good in test series, coaching test series. I was getting 120, 130, 140 those days. ठीक है. So exam on the day of exam मेरे को कोई डाउट ही नहीं था कि मेरा नहीं होगा. I was sure कि ठीक है मेरा तो हो ही जाएगा. And and on the day of real exam I was really stuck कि अरे क्या पूछ रही है यूपीएससी, अरे क्या ही हो गया ये. तो बिकॉज यूपीएससी इज इट्स ओन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. मैंने पीवाईक्यू नहीं किया था, सो आई गॉट स्टक. सो शुरू में व्हेन आई हैड ओवर एक्सपेक्टेशन आई फेल्ड इन दोस एग्जाम्स. लेटर ऑन after failing 3 prelims in a row, I finally realized कि चाहे जो भी हो, I just told myself कि see, my life is anyway at the bottommost point. I have been failing for three years in a row. Nothing could be worse than this. So वो कहते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि उसे डर लगना ही बंद हो जाए. सो मैं उसी पॉइंट पे था लाइफ में कि ठीक है, अब इससे ज्यादा बुरी कहाँ ही लाइफ जाएगी, होगा फिर से आज नहीं निकलेगा, कौन सी बड़ी बात है. 3 साल से तो वैसे भी फेल हो रहे हैं. ठीक है. सो मैंने मन से अपने डर को हटा दिया था. सो जो लोग वो कहते हैं कि देयर इज दिस बैगेज ऑफ फेलियर, आई यूज दैट इन अ पॉजिटिव वे कि ठीक है मेरे पास तो अब डरने को ही कुछ नहीं है. ठीक है. जो शायद सेलेक्टेड हो या जिसको एक्सपेक्टेशन हो, ही विल हैव समथिंग टू फेयर. मैं तो वैसे भी फेयरलेस हो चुका हूँ. सो दैट वाज फर्स्ट थिंग. और मैं था उस दिन की मे बी आज के बाद मैं अटेम्प्ट दूंगा भी नहीं. सो दैट डे आई वेंट वेरी फियरलेसली. ठीक है. और वो जो बोलते हैं आप सर पे कफन बांध के निकलो कि मरने का ही डर नहीं है या तो मर के आएंगे या मार के आएंगे. सो आई वाज वेरी क्लियर कि ठीक है. और in 2022 का पेपर, why I'm referring 2022 again and again, because that was the year when I cleared for the first time and cleared even forest cutoff.
आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ कंप्लीट होपलेसनेस, इसीलिए दैट ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उस दिन जब व्हेन आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द पेपर, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इन अ रो आई कुड नॉट सॉल्व, बिकॉज मैंने बोला कि मैं उस दिन कसम खा के गया था मैं तुक्का नहीं मारूंगा आज, वही सॉल्व करूंगा जो आते हैं। तो पहले 5 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, मतलब डायरेक्टली तो नहीं आते थे। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, 5 क्वेश्चन नहीं बने तो एक तो मेरी माइंड सेट थी कि मुझे फर्क तो पड़ नहीं रहा। सेकंड ये था ना कि व्हेन आई कुड नॉट सॉल्व इवन द 5th क्वेश्चन, मैंने एक बार क्लास की तरफ मुड़ के देखा, बाकी बच्चों को देखा, और मैंने खुद को यही बोला कि 4 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, हर बार मेरा एक ही 2 नंबर से छूटा है। इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत के बाद जब ये 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आते तो इन लोगों को क्या आएंगे, बाकी बच्चों को। ठीक है। सो नो दैट इज इन अ वे यू आर पॉजिटिवली री इन्फोर्सिंग योरसेल्फ कि ठीक है यार, कंपटीशन ही इन दी एंड, अगर मुझे नहीं आ रहा तो इनको भी नहीं आएंगे। सो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया उस टाइम पे। मतलब जब 5वां नहीं बना तो मेरे चेहरे पे हंसी आ गई थी, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं था। और ऐसा गेम पलटा उसके बाद कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 42 तक, टोटल 36-37 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 42 तक आई अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट 2। तो 36 में से मैंने 34 अटेम्प्ट किए, और उस 34 में से मेरे 32 करेक्ट थे। ठीक है, बस 2 गलत हुए, तो 34 × 2 आप जोड़ दो, 64 मार्क्स। उस साल की कट ऑफ 88 थी। सो ऑलमोस्ट तो मैंने क्वेश्चन नंबर 42 पे ही गेम ओवर कर दिया था। उसके बाद शायद मैं किसी बिगनर को भी दे देता तो मेरा प्री निकल जाता। यू सी हाउ दिस माइंडसेट वर्क्स, कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, ना घबराया, ना कोई एक्सपेक्टेशन रखा। तो ना आपको डरना है, ना खुद से कोई फिजूल का एक्सपेक्टेशन रखना, अपने पढ़ाई की काम होके जाओ। और सेम थिंग वाज देयर व्हेन आई अपीयर्ड दिस टाइम आफ्टर 2 सिलेक्शंस की, मेरे मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई क्लियरली टोल्ड माई फैमिली कि आई माइट फेल प्रीलिम्स अगेन। तो मैं उस चीज के साथ गया था कि ठीक है, मैंने इतने साल पढ़ाई की है, 2 बार सिलेक्शन हुआ है, तो ठीक है मैं वर्दी तो हूँ, बट वेदर आई एम वर्दी और नॉट दिस टाइम इज फॉर द ऑनरेबल कमीशन टू डिटरमाइन, नॉट फॉर मी। तो मैं खुद से फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, मैं अपनी पढ़ाई करके जाऊंगा, एग्जाम को चिल मोड में दूंगा। सो ठीक है, सो ये रखना है माइंडसेट। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ अबाउट प्रीलिम्स सर, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। I'll just add this. You have very beautifully mentioned a few things. Say, for example, sweet spot, the number of questions you were attempting. You understood your sweet spot was on a lower side. ठीक है, someone might have the sweet spot on the higher side. किसी को 90 95 अटेम्प्ट करने के बाद अच्छे मार्क आते हो, आपको पता चल गया कि आपको कम करने के बाद ही आएंगे। फाइंडिंग दैट स्वीट स्पॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। उसके अलावा आपने माइंडसेट की बात की कि नो एक्सपेक्टेशंस नो फियर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होंगे तभी एंग्जाइटी और फियर आपकी बढ़ेगी। और जब आप इस माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, बस आपको परफॉर्म करना है। दिस इज अकिन टू दैट श्लोका ऑफ भगवत गीता की कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। करो कर्म, और उसका फल जो है अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। जैसे आपने बोला कि ऑनरेबल कमीशन विल डिसाइड whether I should be getting it this time or not, right? Good enough, good enough, good enough. Now I think we can move ahead towards the main cycle with Anshu. एक चीज और सर ऐड कर देता हूँ, बिकॉज प्रीलिम्स इज ओनली 1 मंथ अवे, कि अभी क्या फोकस करना चाहिए। सो द फोकस शुड बी मोर ऑन डूइंग स्टैटिक पार्ट अगेन एंड अगेन। देखो करंट अफेयर आर एंडलेस, सो डोंट रन आफ्टर देम। जो अभी तक करंट अफेयर पढ़ लिया वही पढ़ो, बट रिवाइज योर स्टैटिक अगेन एंड अगेन। एंड सेकंड थिंग वुड बी लास्ट 10 ईयर पेपर, ये कर लो। एंड व्हेन इट कम्स टू टेस्ट सीरीज, बस राइट 3-4 डिसेंट फुल लेंथ टेस्ट, दैट शुड बी इनफ। बट पीवाईक्यू करना है, सो दैट शुड बी सफाइस। Sure, sure. Yeah, so let's move towards the main section with Anshu. So, as I previously mentioned, yeah, I kept failing prelims year upon year. Okay. But the first time I cleared prelims, that year itself, I got into Damex. Okay. So, and this was when I was a general category candidate. अगर मेरे पास EWS और BC कुछ होता तो आई वो IAS IPS भी हो जाता। सो फॉर दोस अदर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू दोस कैटेगरीज, आप मेरी जितनी मेहनत कर लो तो आप तो डायरेक्टली टॉप पे पहुंच जाओगे वहाँ पे। ठीक है। सो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी। सो वहां पे क्या था कि बिकॉज अगेन इट वाज माय फर्स्ट मेंस, आई रियली हैड वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ। इट वाज आफ्टर मेंस दैट आई रियलाइज दैट आई माइट क्लियर मेंस। ठीक है। सो what I did was my even to sir I was telling कि my main strategy was actually very simple. So मैंने क्या किया था, देखो in the past I was, sir would remember the time कि पहले 40 days बाद prelims के रिजल्ट आते थे। So all the 40 days you won't know कि आपका प्री निकलेगा कि नहीं। And because every year I was failing by 1-2 marks only, so every year after prelims I would calculate my marks and I would be somewhere on the borderline. ठीक है। So 40 days आप वेस्ट नहीं कर सकते। So in the past every year I was enrolling in mains test series. So मेरा प्री कभी नहीं निकला, बिकॉज आई वाज राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज, तो मेरा बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड बन गया था आंसर राइटिंग में। आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद द सिलेबस एंड राइटिंग आंसर्स। सो
उसकी वजह से द फर्स्ट टाइम आई क्लियर्ड प्रीलिम्स मेरे लिए कुछ भी नया टेरिटरी नहीं था। आई हैड डन दीज थिंग्स, ठीक है। फर्स्ट मेंस इज ऑलवेज न्यू फ्रॉम प्रिपरेशन पार्ट, बट आंसर राइटिंग आई हैड डन, टेस्ट आई हैड रिटन, सो इट वाज नॉट एन अनचार्टेड, टोटली अनचार्टेड टेरिटरी फॉर मी। सो आप प्रिपेयर करो, बट अगर आप प्रीलिम्स से फेल हो रहे हो तो मेंस को टोटली निग्लेक्ट नहीं कर देना। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिस साल प्री निकला उस दिन मेंस रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट शुड बी इट। सो मैंने ऐसा किया था कि मैं हर साल टेस्ट तो दे ही रहा था, सिलेबस पता था, बट बिकॉज मैंने कभी मेंस लिखा नहीं था इससे पहले, से मेरे पास पूरे सिलेबस के एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स नहीं थे मेरे पास कहीं भी। सो मैंने क्या किया, अगेन आई वेंट टू शून्य आईएएस, उनकी एक बुक आती है जी मेंस की, जीएस 1 की एक मोटी सी बुक, जीएस 2 की एक मोटी सी बुक, एंड नाउ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो कम अप विद सिमिलर मटेरियल। सो वो बुक मैंने बस खरीद लिया। मुझे सब कुछ पता तो था ही, सब कुछ मैंने पढ़ा ही था मोस्टली, और कुछ एरियाज में मेरे खुद के भी डिसेंट नोट्स थे, पर लार्जली मैंने उनको रेफर किया, उनको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़ा। और आई विल रेफर टू द सोर्सेज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो मैंने किया था कि लाइक हिस्ट्री में यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री, तो आई डिड स्पेक्ट्रम ओनली, यहाँ पे मैंने शून्य रेफर नहीं किया। सिमिलरली इन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, लाइक आई टोल्ड सर कि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद सर, सो दोज एंशिएंट मिडिवल आई डिड अगेन। और मैंने हिस्ट्री की कोचिंग बालियान सर से ली थी, तो वहाँ जो मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स थे वो मैंने पढ़े वापस से। और वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस भी मैंने अपने ही नोट से पढ़े, वो बलियान सर के जो नोट्स थे। तो अगेन हियर आई डिड नॉट रेफर शून्य। फॉर ज्योग्राफी मेंस का सिलेबस है स्लाइटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन ज्योग्राफी, सो वो आई टोटली डिड विद शून्य बिकॉज एनसीईआरटी हैज इट्स ओन लैंग्वेज। सो शून्य की जीएस 1 की बुक आती है, दैट आई डिड। इन सोसाइटी आई just did some overarching reading of Shunya IS book, but mostly because my optional was anthropology, so वहाँ पे society has a prominent role, so मैंने वो कर लिया था। Besides मैंने PYQ सॉल्व किए थे। अब PYQ में भी यहाँ पे मिनी कोचिंग इंस्टीट्यूट कम अप विद देयर ओन सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो मैंने बस वो पढ़ लिया था सोसाइटी का। इन माय केस इट वाज शून्य आईएएस, अगेन दे हैड दिस सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर जीएस मींस, तो वो मैंने कर लिया था। सो और ये मैंने सारे पेपर में किया कि और कुछ नहीं, तो मैं पीवाईक्यू 10 साल के पढ़ के जरूर गया था, लिख के नहीं गया था, इतना टाइम नहीं था, बट आई रेड ऑल द क्वेश्चन। सो वंस यू डू पीवाईक्यू व्हाट विल हैपन कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड एज इट इज, और सेम क्वेश्चन के अगर आप जीएस 2 में जाओगे सेम आरटीआई का क्वेश्चन, सेम सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन, जीएस 1 में सिमिलर क्वेश्चन, वही डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस 3 में, थीम्स विल बी रिपीटेड। तो अगर आपने पीवाईक्यू के सॉल्व्ड आंसर देखे हैं ना, तो सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड और सेम आंसर का कंटेंट भी आप यूज कर सकते हो। इट रियली मेक्स योर वर्क इजी, बिकॉज देखो दिस इज एन एग्जाम जहाँ पे एक एक नंबर की फाइट होती है। व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इनटू दानिक्स, तो 2 नंबर से ही बचा था मैं, 2 नंबर से सिलेक्शन हुआ था मेरा, ठीक है। जब फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया तो उस साल मेरा प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ इज वेरी हाई, आई टोल्ड यू 15-20 मार्क्स मोर देन सीएससी। तो वो बस मार्जिनली क्लियर हुआ था, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गलत होता तो उस साल मेरा फॉरेस्ट नहीं होता। ऑल्दो जब फिर मेंस का मौका मिला आई गॉट 5th रैंक, बट प्रीलिम्स बचा तब तो। सो दिस इज एन एग्जाम जहाँ पे एक एक नंबर की फाइट होती है, ठीक है। अभी भी यहाँ आईएएस बन गया, मैं 5 नंबर ऊपर हूँ जनरल कैटेगरी के आईएएस के कट ऑफ से। सो 990 मार्क्स तक लास्ट जनरल की सिलेक्शन प्रोबेबली हुई है, आईएएस में मेरे 995 मार्क्स हैं। सो एवरी क्वेश्चन एवरी मार्क्स मैटर्स, ठीक है। कहीं भी एक सिंगल क्वेश्चन मेरा कहीं मान लो छूट गया होता टाइम मैनेजमेंट, तो शायद आज मैं आईएएस नहीं बन पाता, ठीक है। सो दीज थिंग्स मैटर अलॉट, ठीक है। और फिर फॉरेन सर्विस होती तो मेरे घर वाले बहुत गुस्सा करते मेरे ऊपर। सो हाँ, पेरेंट्स को फॉरेन सर्विस पसंद नहीं थी, आईपीएस मेरी मम्मी को पसंद नहीं थी, सो लकीली आई हैव लैंडेड एट अ स्पॉट वेयर एवरीवन इज हैप्पी कि ठीक है आईएएस बन गया। सो यू सी एवरी सिंगल मार्क्स मैटर यार, यहाँ पे आपके पास कंफर्ट क्वेश्चन नहीं होता इस एग्जाम में, ठीक है। सो आपको पीवाईक्यू करना है, पेपर 1 पीवाईक्यू बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट इन एवरी पेपर, बट वो कर लेना। तो वो मैंने शून्य की बुक खरीदी थी। इन जीएस 2 व्हाट आई डन वाज आई इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ माय प्रिपरेशन मैंने शुभ्रा मैम के यहाँ पे क्लासेस ली थी जीएस 2 की ही अलग से। तो जो मैम ने नोट्स बनाए थे वो मैंने पढ़ के गया था उसमें। और ओनली आईएएस और शून्य ओनली आईएएस की एक बुक आती है प्रहार करके मेंस के लिए, उस बुक से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे मिसिंग टॉपिक के, और शून्य की तो जीएस 2 की बुक थी, तो कुछ कुछ मैंने ऐसा कर लिया था। देन आई हैड मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल important articles of constitution, all DPSPs and fundamental rights, and list of court judgment, mostly ये शुभ्रा मैम ने करा दिए थे, बट फिर भी अगेन आई मेड अ लिस्ट रिगार्डलेस। और इन आईआर यू कैन कोट थिंकर्स, लाइक वो जो भी आर्टिकल आते हैं वहाँ पे उनके नाम आप कोट कर सकते हो कि जयशंकर सर ने ये बोला है, तो राजा मोहन सर ने ऐसा बोला है, सो दोज थिंग्स यू कैन कोट। सो वो मैंने थोड़े से लिस्ट बना लिए थे। और लाइक मैं आपको बता रहा था कि माई डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, दीज आर माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, तो काफ़ी कुछ तो मैं खुद से भी लिख देता था, बट ऐसा। और पीटी पीटी मीन्स 365 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर अपडेट, ठीक है। तो वो करंट अफेयर कर लो, एंड नीडलेस टू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये कर लेना है।
GS3 was again largely along same lines. So वही शून्य की मैंने बुक पढ़ ली, करंट अफेयर के लिए मीन्स 365 कर लिया, थोड़ा बजट इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाज समथिंग कि आई वाज कीनली इंटरेस्टेड इन ऑलवेज, बचपन से पढ़ रहा हूँ। और आपको वो जो स्टैटिक की आपकी जो बुक थी प्रीलिम्स की, वो भी रेफर कर लेना है, इन्वायरमेंट की बुक, इकोनॉमी की बुक, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, वो बेसिक मटेरियल, बिकॉज some questions will be from basic material. Even in GS2 you have to do Lakshmikant again, so that you have to do. और उसके बाद वन वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड वाज कि मैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल बहुत पढ़ता था, और उससे मुझे बहुत अच्छा डेटा मिल गया था मेंस के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो अदरवाइज किसी और के आंसर में नहीं होंगे, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आप वो 3 महीने और कुछ करो ना करो, कोशिश करो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के एडिटोरियल पढ़े। बहुत बहुत डाइवर्स टॉपिक को बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे, और वो 3 महीने की बात नहीं है, काम अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है। सो यू विल हैव रियली रियली गुड, अच्छे कंक्लूजन मिल जाएंगे, अच्छे डेटा मिल जाएंगे, अच्छे इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे। दैट इज वेरी हेल्पफुल। इवन इन माय इंटरव्यू दिस टाइम, मैं फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक है, बट मैंने न्यूज़पेपर एक दिन भी नहीं छोड़ा, और हर दिन कायदे से मैंने नोट्स बनाए थे। इतने मोटे मेरे नोट्स हो गए थे 3 महीना करते करते, अप्रैल तक, अप्रैल में मेरी इंटरव्यू थी, पर इतने मोटे नोट्स सही, पर मैंने बनाया उनको पूरा। और इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट मिली थी मुझे उसमें कि इंटरव्यू में मतलब मैं बोलता था वो खुश हो जाते थे। सो न्यूज़पेपर एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो यूट्यूब का एडिटोरियल एनालिसिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रियल एडिटोरियल, वो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। GS4 is one thing I would like to especially emphasize. See, ethics का पेपर is a low hanging fruit, ठीक है, very low hanging fruit। बाकी GS पेपर की 20% मेहनत कर लो, यहाँ पे पर कायदे से कर लो, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं यहाँ पे। सो द सोर्स दैट आई रेफर्ड इन माई टाइम वाज कि अंसारी सर, लुकमान IAS, तो उनके नोट से मैं पढ़ा था, ठीक है। बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप किसी भी सोर्स से पढ़ो, लाइक आई प्रीवियसली मेंशन्ड, ऑल थिंग्स आर इक्वली वैलिड। एथिक्स का पेपर इज वेरी लेंथी एक्चुअली, ठीक है, पीपल स्ट्रगल टू फिनिश इट ऑन टाइम। तो यहाँ पे मैं अपने टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूंगा। मैंने एथिक्स में क्या किया था कि क्वेश्चन पेपर यू विल गेट 4-5 मिनट्स बिफोर द बेल विल रिंग। सो उस टाइम पे मैंने थ्योरी वेरी नहीं पढ़ा, मैं फर्स्ट केस स्टडी को पूरा पढ़ लिया बस वो 4-5 मिनट में, और पूरा स्ट्रेटजाइज कर लिया कि व्हाट आंसर आई एम गोइंग टू राइट, एंड एज सुन एज बेल रैंग, मैंने आंसर लिखना शुरू कर दिया। सो पहले सेकंड से ही मैं टाइम को यूटिलाइज करा था, और शुरू में हमारी थोड़ी राइटिंग स्पीड स्लो होती है, ठीक है। सो इट टुक मी प्रॉपर 15 मिनट्स टू राइट द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट केस स्टडी। फर्स्ट आंसर लिखते लिखते थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो सेकंड केस स्टडी ऑनवर्ड्स 15-16 मिनट रफली में रीडिंग द क्वेश्चन एज वेल एज राइटिंग द आंसर हो रहा था मेरा, ठीक है। सो ऐसे में चलता गया, तो यू हैव 6 केस स्टडी 15-16 मिनट ईच, तो 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 35 मिनट में कायदे से मेरा केस स्टडी कंप्लीट हो गया। एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट, होता नहीं है लोगों से जनरली है। सो जब थ्योरी पार्ट आई तो मेरे पास प्रॉपर 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 25 मिनट बच गए थे, सो आई कुड राइट गुड थ्योरी आंसर्स देयर, ठीक। सो दिस थिंग यू हैव टू डू, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एथिक्स, लोगों का पेपर ही नहीं फिनिश होता उसमें। थ्योरी में ये करना है आपको कि मैंने थ्योरीज में ना अलग से एक लिस्ट बना ली थी डायग्राम्स की, कीवर्ड्स की, और हर कीवर्ड के अलावा एग्जांपल कि अब अगर इंटीग्रिटी है तो इंटीग्रिटी का एक डेफिनेशन, और इंटीग्रिटी में कोई रियल लाइफ एग्जांपल, किसी ग्रेट थिंकर के एग्जांपल, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल, ये सब करना है। और यहाँ पे किसी कोई एथिक्स में एक चैप्टर भी है थिंकर्स के बारे में, इंडिया फिलोसफर्स एंड थिंकर्स, तो उनके बारे में भी कि अगर कैंट ने कुछ इंटीग्रिटी पे बोला है, गांधी जी ने कुछ बोला है, तो उसको हर जगह पे आपको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। एंड माई नोट्स वर वेरी क्रिस्प, मतलब माई इंटायर एथिक्स नोट्स वर लाइक 60-70 पेजेस ओनली। तो उसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाया, और मतलब बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना एथिक्स की, डियोंटोलॉजी क्या है, कांट क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन केस स्टडी ना, केस स्टडी को आप सॉल्व तो करो, बट देन यू ट्राई टू राइट कि व्हाट एथिकल एंगल दिस इज जस्टिफाइंग, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल गांधी जी के 7 sin, ठीक है। सो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया सोर्स बन गया था कि जैसे 7 sin 1 इज की कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ठीक है। तो अगर केस स्टडी है कि देर इज एन इंडस्ट्री दैट इज पोल्यूटिंग रिवर, यू आर मैनेजर, अब आप आवाज उठाओगे तो यू विल बी फायर्ड, तो व्हाट विल यू डू। तो while justifying my stand, I would write कि not taking this stand would be one of the sin as said by गांधी जी, commerce without morality, ठीक है। या अगर ये मैं नहीं करूंगा, दिस वुड बी माई एथिकल फीडिंग। तो ये की टर्म्स यहाँ पे, थिंकर्स के नाम, ये सब जो थ्योरी में हमने पढ़ा, वो मैं बहुत कोट करता था केस स्टडीज में कि ये मेरी एथिकल फीडिंग होगी, दिस विल बी माई फेलियर ऑफ मोरल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, विच विल बी फेलियर ऑफ कैंटियंस थ्योरी, कि आपको मोरल एब्सोल्यूटिज्म करना है, ठीक है। या फिर वही जो मैंने अभी कहा कि या गांधी जी के तो 7 sin थे, वो तो इतने काम आ रहे थे मेरे को कि मत पूछो, ठीक है। सो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट दिस, तो वो बहुत बहुत यूजफुल थे। सो उसको मैं बहुत कोट करता था हर आंसर में कि वाई आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्टैंड, ठीक है।
सो एथिक्स का ये अप्रोच था। और ओवरऑल मैं जीएस के पेपर का ये बोलूंगा कि जीएस इज, मतलब ठीक है, अदर पीपल माइट स्ट्रगल, बट मेरे लिए मेंस बहुत इजी रहा, भगवान की दया से। मतलब 4 मेंस लिखा, चारों निकले सीएससी और फॉरेस्ट मिला के। सो मेंस में मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करता था, 11 to 20, देयर आर 15 मार्कर्स। वहां पे यू गिव 10 मिनट्स ईच, ठीक है। अब आप 10 मिनट दोगे उसको, और 100 मिनट्स ऐसे हो गए। और उधर आप फिर 10 मार्कर में 7 मिनट्स ईच दो, तो 70 मिनट। तो उधर 100 और 70, 170 मिनट, 3 घंटे का एग्जाम है। when you try to finish paper in 170 minutes, that is when you will be able to finish in 180। 180 टारगेट रखोगे तो फिर पक्का छूटेगा पेपर, ठीक है। सो 170 को टारगेट पे रखना है। सो क्या होता है कि when you try to write each 15 मार्कर in 10 minutes, तो बीच में एक दो ऐसे होंगे लंबे जहाँ पे या तो कंटेंट बहुत पूछा होगा, या आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, या आपको इतने अच्छे से आता है कि उसमें आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो, तो बीच में थोड़ा सा टाइम स्लिपेज होगा। सो 15 मार्कर को जब आप 10 मिनट ईच यानी 100 मिनट में करने की कोशिश करोगे, तो 110 मिनट में वो होगा। मेरे साथ ऐसा ही होता था। तो 110 मिनट 15 मार्कर में लग जाते थे मेरे, क्वेश्चन नंबर 11 to 20। और फिर जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में आता था, तो मेरे पास 70 मिनट बचे होते थे। यहाँ भी मैं लाख कोशिश कर लो कि मैं हर क्वेश्चन को 7 मिनट में लिखूंगा, थोड़ी सी टाइम स्लिपेज होती थी। सो लास्ट के जो दो क्वेश्चन होते थे, आइडियली दो क्वेश्चन में 7 मिनट के हिसाब से 14 मिनट आपके बचने चाहिए लास्ट के दो क्वेश्चन के लिए। बट लास्ट में मेरे पास 10 मिनट ही बचते थे लास्ट के दो क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट में मैं वो दो क्वेश्चन लिखता था जो मुझे अच्छे से नहीं आते थे, जिसमें मेरे पास कम कंटेंट है। तो इस हिसाब से मेरा पेपर बहुत बैलेंस्ड हो जाता था, कि जो आ रहे हैं उसको ढंग से लिख लिया, जो उतने अच्छे से नहीं आ रहे उसको कम से कम 5 मिनट ही लिख लिया, ठीक है। एक और पार्ट होती है कि लोग क्वेश्चन देकर डर जाते हैं, करे भाई साहब क्या पूछ दिया, क्या करें इसमें। कुछ मत करो, हर क्वेश्चन को बस 2 से 3 सब हेडिंग में ब्रेक कर दो। यूजुअली यूपीएससी खुद ही मल्टीपल चीजें क्वेश्चन में पूछती है, पर अगर नहीं भी पूछ रही है तो मल्टीपल सब हेडिंग में ब्रेक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर से कि क्वेश्चन आ जाता है फिजिकल फेडरलिज्म पे, तो हम्म आप पहले ये लिख दो कि व्हाट इज फिजिकल फेडरलिज्म, ये पहला पिलर हो गया। सेकंड हो गया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हम्म सेंटर का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है, बिकॉज सेंटर 41% टैक्स अकेले कलेक्ट कर रही है, तो हम्म सेंटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ एक्सपेंडिचर बाई इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर का 40 ही है, स्टेट ही 60% कर रही है, सेंटर हम्म से ज्यादा टोटल स्टेट्स का क्यूमुलेटिव है। हम्म तो स्टेट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। सो दिस इज वाई फिजिकल फेडरलिज्म, सो दैट इज योर सेकंड पिलर। फिर हम्म थर्ड आप ये कर दो कि अभी फिजिकल फेडरलिज्म क्यों स्ट्रेस में है, हम्म क्या इश्यूज आ रहे हैं, हम्म कि वो क्या बोलते हैं, जीएसटी कॉम्पनसेशन वाला खत्म हो गया है, ठीक हम्म है। न्यू फाइनेंस कमीशन आई है, तो डिबेट चल रहा है, स्टेट डिमांड करें कि 50% डिविजिबल पूल बना दो स्टेट का, जबकि सेंटर ने लास्ट टाइम उसको 42 से 41% पे रिड्यूस कर दिया, हम्म राइट। और भी सेंटर स्टेट के इश्यूज चल रहे हैं। तो बस आप सब हेडिंग में ब्रेक कर दोगे, तो हर सब हेडिंग के अंदर आपको 3-4 पॉइंट वैसे भी मिल जाएंगे। बस इतना ही करना, और लास्ट पिलर आप बना दो कि हाउ टू रिस्टोर दिस बैलेंस ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म कर दो, ठीक है। हम्म और तो बस फिजिकल फेडरलिज्म क्वेश्चन आए, अब डरना नहीं है कि मैं इसमें 2-3 पेज क्या लिखूंगा। बस हम्म फटाफट 2-3 सब हेडिंग ब्रेक दिमाग में तोड़ा कि व्हाट इज फिजिकल फेडरलिज्म, हम्म उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आजकल क्यों स्ट्रेस में है, या ये क्वेश्चन क्यों आया, और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द रेमेडियल मेजर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, बस एक डेफिनेशन लिख दो कि दिस इज फिजिकल फेडरलिज्म, कि मतलब सेंटर स्टेट के बीच में कैसे फाइनेंसेस डिवाइड होते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल दिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो कोई अगर दूसरा टॉपिक है, सो राइट अ डेफिनेशन, राइट अ डेटा, राइट सम रिपोर्ट, ठीक है, कि एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया की चाइल्ड मोर्टेलिटी इतनी है। अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, पोल्यूशन पे आ रहा है, तो लिख दो कि एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया इतनी पॉल्यूटेड है, उस टाइप से, ठीक है। और कंक्लूजन में लोग बहुत बार होते हैं कि यार कंक्लूजन में क्या करना है, नथिंग, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट राइट रिलेवेंस ऑफ दैट थिंग। तो अगर फिजिकल फेडरलिज्म की बात आती है, तो लिख दो कि given that states contribute to 60% of more than 60% of India's total government expenditure, maintaining a proper balance between center and state is is paramount for India's development story. Simple सी बात है, हो गया। या given that states largely depend on center for funds transfer, maintaining a healthy relationship between center and state is paramount for India's development story। बस उस चीज का आपने रेलेवेंस लिख दिया, दैट्स इट। कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। सो मेरे लिए मेंस इतना ही था कि आप टाइम मैनेज कर लो, हर क्वेश्चन को सब हेडिंग में ब्रेक कर दो। देखो सब हेडिंग से ब्रेक करोगे तो आप आपके लिए खुद ही लाइफ इजी हो जाएगी, और एग्जामिनर की भी लाइफ इजी होगी, उसको आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसने फटाफट देखा सब हेडिंग, और मैं तो ऐसे ऐसे सब हेडिंग लिख के आया हूँ कि वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, प्रॉपर लिटरली यही लिखा हूँ कि वाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, और आगे क्वेश्चन मार्क भी बना दिया, क्योंकि सब हेडिंग मुझे सूझ नहीं रहा था कि क्या लिखूँ इतनी जल्दी। तो मैं प्रॉपर यही लिखा, और एग्जामिनर की लाइफ इजी हो गई होगी, उसने देखा कि चलो बच्चे ने इस पार्ट को एड्रेस किया है, राइट। सो सबमिटिंग शून्य आईएएस के मटेरियल पे मैं लार्जली रिलाई किया था, और टाइम मैनेजमेंट,
और हाँ, बिकॉज सब हेडिंग अप्रोच से मैं चलता था तो मैं घड़ी देखता रहता था कि मेरी टाइम ओवर शूट ना हो। तो किसी सब हेडिंग में 4 पॉइंट लिखना है पर टाइम कम पर है, मैं 3 लिख के आगे बढ़ जाता था। तो पेपर फिनिश करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग लॉट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। और लेट्स से कि आपके पास 4 सब हेडिंग है और हर सब हेडिंग के अंदर आप लेट्स से 3 से 4 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो टोटल आप 12 से 15 पॉइंट लेटर से लिख रहे हो। तो कोशिश करो कि इस 12 से 15 में एटलीस्ट 6-7 पॉइंट में कुछ छोटा सा एग्जाम्पल सब्सटैंशिएट कर दो। एग्जाम्पल्स मैटर अलॉट, ठीक है। तो ये कर लेना है। मे बी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड कि जीएस में तो शायद इतना ही था मेरे साइड से। answer सर आप writing कुछ बोले figure, थे? I remember you saying in our previous interactions कि सब लोग खराब ही लिखेंगे, सब लोग एवरेज आंसर ही लिखेंगे, आपको खराब से हम्म थोड़ा अच्छा लिखना है, हम्म right? And whatever description you have given, I think that makes perfect sense. Now, GS 1 2 3 4 के बारे में हमने बात की, ऐसे के बारे में आप हम्म क्या बोलोगे विद्यांशु? हम्म। तो सर कमिंग टू ऐसे, ऐसे ही समथिंग जहाँ पे पीपल आर स्कोरिंग इन 70s एंड 80s एंड पीपल आर स्कोरिंग इन 140s, ठीक है। जीएस में आप बहुत मेहनत कर लोगे तो 415 420 425 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे चारों जीएस मिला के। पर ऐसे में है कि बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब 80 एंड 140 इज लाइक हम्म, आपका मेंस फेल हो जाए और दूसरा बंदा आईएएस बन जाए, हम्म, इतना गैप है वो। हम्म, सो इन CSE 22 आई हैड 107 मार्क्स इन ऐसे विच वाज ठीक है, ओके ओके सॉर्ट ऑफ, कि ना बहुत बुरा था ना बहुत अच्छा था। हम्म, एंड इन नेक्स्ट ईयर आई सॉ कि मेरे दोस्तों का क्या हाल हुआ था ऐसे में। अच्छे हम्म, अच्छे दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सॉरी टू से लाइक दैट, बट ऐसा था। तो ऐसे वाज समथिंग। तो जब 2024 का मेरा मीन्स आया, सो दैट वाज वन एरिया आई वाज जेन्युइनली एंशियस अबाउट कि इसमें क्या करना है। सो दैट इज व्हेन आई एक्चुअली रीच्ड आउट टू जीशान सर कि सर आई विल नीड सम सपोर्ट हियर। तो वहाँ पे था। और एज इट टर्न आउट, जब मैं सर से सीखा, बातें की, तो आजकल लोग फिलोसफिकल ऐसे से डर रहे हैं कि यार यूपीएससी क्या पूछ रही है। मेरे को तो इतना मजा आया कि अब मैं फिलोसफिकली लिखता हूँ। जीएस बेस्ड अगर मुझे कोई वो भेज दे कि हेल्थ केयर ऐसे, हेल्थ केयर और वुमेन पे लिख दो, तो शायद मेरे से लिखा भी ना जाए कि अब इस पे मैं क्या लिखूँ। फिलोसफिकल में इतनी मजा आ रहा था मुझे। सो ऐसे में आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जो भी टॉपिक दिया गया है आपको, आपको पहले, ठीक है 3-4 हैं, आप वही टॉपिक चूज करो जो आपको समझ में आ रहा है। एंड देन एन एनेक्डोट कुड बी अ गुड स्टार्ट। मैं एक पूरा एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा एक ऐसे को, ठीक है। एनेक्डोट कुड बी अ गुड स्टार्ट। उसके बाद आपको पहले थीसिस लिखना है जो टॉपिक के फेवर में बात करे, अलग अलग डायमेंशंस में। फिर आपको एंटीथीसिस लिखना है कि दिस टॉपिक इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड, अदरवाइज भी हो सकता है। और थर्ड में आपको एंटीथेसिस के बाद सिंथेसिस लिखना है कि अगर प्रो भी है कॉन्स भी है, अगर इसके तो सच कहाँ लाई करता है और क्या अप्रोच होना चाहिए इंसान का, ठीक है। सो एंटीथेसिस, और उसके बाद फिर आप पूरे ऐसे की एक समरी लिख करके फिर एक कंक्लूजन लिखो। सो पहले मैं एक ऐसे का स्ट्रक्चर रफली बता देता हूँ जो मेरे माइंड में। आई हैव नॉट मेड एनी नोट्स बट देख करके, और फिर आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद जीशन सर, क्योंकि हम्म, वहीं से हम मैं और सर जुड़े हुए थे। हम्म, सो लाइक इस साल का एक ऐसे का टॉपिक था कि ऑल ग्रेट थिंग्स बिगिन विद सिंपल आइडियाज, ऐसे। तो मैंने जब सर के साथ PYQ प्रैक्टिस किया था, सो देयर वाज दिस थिंग कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सो वहां पे मैंने और सर ने डिस्कस किया था दिस एनेक्डोट अबाउट गांधी जी सॉल्ट मार्च की। गांधी जी ने एक सिंपल सा सॉल्ट देखा और उससे उन्होंने अंग्रेजों को हिला के रख दिया। इतनी सिंपल सी चीज थी कि अंग्रेज को इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाया और पूरा देश यूनाइटेड हो गया विदाउट एनी लॉजिस्टिकल इशू, ठीक है। तो कितनी सिंपल सी चीज थी और कितना लार्ज हो गया। तो वही सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, आप गांधी जी की सॉल्ट मार्च को यूज कर सकते हो। इस बार जब केस स्टडी, इस बार का जो क्वेश्चन है कि ऑल थिंग्स विद ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिंपल बिगनिंग, तो अगेन मैंने वही डाला गांधी जी का। तो एक तो PYQ से हो गया। उसके बाद अब आप ऐसे के थेसिस पे आओ कि थेसिस ये है कि हर बड़ी चीज की जो कॉन्सिक्वेंसेज, बड़ी कॉन्सिक्वेंसेज वाली चीजें हैं, उसकी सिंपल से बिगनिंग होती है। तो अब आपको लिखना है कि सिंप्लिसिटी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, सिंप्लिसिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट वुड बी कि आप खुद से क्वेश्चन सोचो इस चीज को लेकर थेसिस में कि सिंप्लिसिटी क्यों जरूरी है। और क्या बोलते हैं, सेकंड है कि सिंप्लिसिटी कैसे ग्रेटनेस को लीड करती है, कैसे सिंपल चीजों से बड़े बड़े आइडियाज निकलते हैं। अब सिंप्लिसिटी क्यों जरूरी है, तो फिर इसका होगा कि सिंपल चीजें रहेंगे तो आप लार्जर मासेस से कनेक्ट कर पाओगे। सेकंड होगा कि सिंपल चीजें होंगी तो रिसोर्सेज कम लगेगा। सिंपल चीजें होंगी तो कॉमन मैन भी आपकी बातों को सिंपली समझ सकता है, राइट। तो ऐसे 4-5 डायमेंशंस हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट लाओ। तो पहला क्वेश्चन यही था कि सिंप्लिसिटी ही क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया बिकॉज लोग कनेक्ट कर पाएंगे, रिसोर्सेज कम रहेगा। तो ये सारे आर्गुमेंट हो गए। अब सर ने हमें सिखाया था कि 3 स्टेप प्रोसेस होता है, आर्गुमेंट, सब्सटेंशिएशन एंड इन्फरेंस। तो पहला मैंने लिखा कि अगर चीजें सिंपल होंगी तो लार्जर मासेस से कनेक्ट हो पाएगा।
तो इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल आप खादी मूवमेंट बोल सकते हो। कितनी सिंपल सी चीज थी, लोग वही खादी पहन रहे थे, तो हमने जब स्वदेशी स्टार्ट किया तो खादी पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो सिंप्लिसिटी थी, मासेस उसको कनेक्ट कर पाई, तो आपने एक आर्गुमेंट दिया कि मासेस कनेक्ट हो रही है। फिर आपने उसको सब्सटेंशिएट किया स्वदेशी और खादी मूवमेंट से। ठीक है, और फिर आपने उसका इन्फेरेंस बताया कि देखो इसकी वजह से सिंप्लिसिटी सक्सीड कर पाई यहाँ पे, राइट। तो ये हुआ। तो पहला ये डायमेंशन आपको देखना था कि वाई सिंप्लिसिटी सक्सीड्स। उसके बाद सिंप्लिसिटी से कैसे, क्या बोलते हैं, वो लार्जर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो सिंप्लिसिटी से आपको बिल्डअप करना इजी हो जाता है, आपकी ऑथेंटिसिटी लोगों को दिखती है। ठीक है, इस तरह के आर्गुमेंट हो गए। ठीक, अब हमने बात कर ली कि ठीक है सिंप्लिसिटी से हो गया, अब आपको एंटीथेसिस भी लिखना है कि हमेशा सिंप्लिसिटी से चीजें नहीं हो पाती हैं लार्जर, अदर वे राउंड भी, आप ऐसे से डिसएग्री भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे दो, लेट से मॉडर्न चिप मेकिंग का जो ताइवान बना रही है टीएसएमसी। यार कितनी खतरनाक चीज है वो। ठीक है, कोई कंट्री ऐसे नहीं बना सकती उसको। या चैट जीपीटी हो गया, कितने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लग रहे हैं, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। हमारे पास डिफेंस पीएसयूज है, उनसे तो डिफेंस प्रोडक्ट बन नहीं रहा है। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी वो बना पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो सिंप्लिसिटी फेल भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हाई एंड मशीन्स चाहिए, बहुत टॉप लेवल पेइंग प्रोफेशनल्स चाहिए। ठीक है, हर चीज सिंपल इंसान ही नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज वगैरह चाहिए होती है, बहुत बहुत सारी चीज़ें रिसोर्स एक्सटेंसिव होती हैं। जैसे कि अभी वो सैम ऑल्टमैन ने बोला था कि मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बनाने के लिए। तो बहुत सिंप्लिसिटी से और विदाउट फंड आप नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन भाई एक आर्ग्यूमेंट, फिर उसको सब्सटेंशिएट करना, ये एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नहीं डालने, पहले आर्ग्यूमेंट फिर एग्जाम्पल। ठीक है, सो थेसिस एंटीथेसिस आप समझ गए कि आपको काउंटर भी करना है, मल्टीपल डायमेंशन पर काउंटर करना है ऐसे को। और फिर आप सिंथेसिस बताओ कि ठीक है आपने प्रोज भी बता दिया, कौन भी बता दिया, कल को आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, सीएम आपसे पूछेगा कि डीएम साहब बताओ यहाँ पे डैम बनाना चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे सर डैम बनाने का तो ये फायदे हैं, पर सर ये नुकसान है कि गांव डूब जाएंगे और लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फ्लड आ जाएंगे। तो सीएम बोलेगा यार तुमने दोनों बता दिया कि फ्लड कंट्रोल हो गया, बिजली बन गई, लेकिन गांव डूब गया, अब ये बताओ कि मैं क्या करूं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम कुछ वे आउट देना है। तो आप ये बोलो कि सर पहले तो हम लेट्स से कि रिन्यूएबल एनर्जी देख लेते हैं, अगर वो हो जाए तो ठीक है। अगर डैम बन ही रहा है तो हम एरिया को सर्वे कर लेते हैं कि कितने एरिया डूबेंगे। अगर गांव डूब भी रहे हैं तो हम लोगों को पहले से ही रीसेटल रिहेबिलिटेट कर दें, और उस तरह से कर ले कि उनका कल्चर प्रिजर्व रहे, उनकी इकोलॉजी प्रिजर्व रहे। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार टॉपिक का फॉर में बता दिया, एक बार अगेंस्ट में बता दिया, फिर एक कंक्लूजन लिख दिया, फिर आप कर क्या रहे हो उस टॉपिक में। आपने तो कोई मीनिंगफुल एंड दिया ही नहीं, तो आपको एक मीनिंगफुल एंड देना है। तो यहाँ पे जैसे लेट्स से कि ये वाला एग्जांपल था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ठीक है मोस्टली सिंपल थिंग्स ही होती हैं, बट हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी सब नीडेड होती हैं सक्सेस के लिए बहुत। और बहुत बार आप एक्सेसिवली सिंपल रहोगे तो क्या बोलते हैं, हो सकता है आप कभी रास्ता भी भटक जाओ। जैसे आप नक्सल मूवमेंट देखो, एक सिंपल सी बात पे वो स्टार्ट हुई थी कि क्या बोलते हैं पीजेंट और कॉमन मैन, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अंडर द हैंड्स ऑफ स्टेट, बट देखो आज वो मूवमेंट कैसा भटक गया अपने रास्ते से। बहुत सिंप्लिसिटी की बात कर रहे थे पर भटक गया। कम्युनिज्म भी सिंप्लिसिटी की बात करता था, पर देखो कहाँ वो लोग पहुंच गए। वर्ल्ड की वर्स्ट डिक्टेटरशिप आज वही है। ठीक है, कैपिटलिज्म ऑन दी अदर हैंड बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम लगता है, पर आज तो लार्जली वही सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये सब आप डाल सकते हो। कहीं ना कहीं आपको सिंथेसिस करना होगा कि ठीक है ना हम कैपिटलिज्म अडॉप्ट करेंगे, ना हम कम्युनिज्म अडॉप्ट करेंगे, हम क्या अडॉप्ट करेंगे, डिलिब्रेशन अडॉप्ट करेंगे, कि हम हमेशा ओपन माइंडेड रहें, हम हमेशा एक फेयर इकोनॉमी की तरफ रहें, आंख बंद करके ना हमको कम्युनिस्ट बन जाना है, ना आंख बंद करके कैपिटलिस्ट बन जाना है। ठीक है, हम मेरिट को प्रमोट करेंगे, बट एट द सेम टाइम मेरिटोक्रेसी को पनिश नहीं करेंगे, सोसाइटी को बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफाई नहीं करेंगे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है सरकार का वो होता रहेगा। सो दिस इज द वे आउट। तो आपको एक सिंथेसिस देना है कि दोनों के बीच में जो इनकोहेरेंस आ रहा है उसका क्या सोल्यूशन होगा, राइट। अगर सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो ठीक है, कुछ कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जैसे चिप मेकिंग, न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसके लिए फिर पूरे कंट्री का अप्रोच रखना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। सो दीज आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, और उसमें सबका अप्रोच लगेगा। आप क्या बोलते हैं वो खादी और ग्राम, क्या बोलते हैं वो ग्राम लेवल की इंडस्ट्रीज से, तो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री से तो वो सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना सकते हो, राइट। सो वही है कि वो ग्राम वो कॉटेज इंडस्ट्री अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी अपनी जगह है, दोनों का अपना ड्यू एम्फेसिस है। हमें ब्लाइंडली किसी को नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की अपनी मेरिट है। सो दैट इज सिंथेसिस। और फिर आप एक कंक्लूजन लिख दो, जैसे कि अभी मैं और सर डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे इस टॉपिक का कंक्लूजन था कि द टॉपिक वाइज कि भाई कि एवरीथिंग द हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज बिगन फ्रॉम अ सिंपल आइडिया। तो मैं सर को बता रहा था कि मैंने जो सर कंक्लूजन लिखा था कि देयर इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड, उन्होंने बोला था कि ह्यूमैनिटी तब
इस प्लेनेट की मास्टर नहीं बनी जब उन्होंने सिविलाइजेशन या एग्रीकल्चर को मास्टर किया था। वो तब इस प्लेनेट की मास्टर बनी व्हेन देयर वाज दिस मोमेंट ऑफ हीलिंग ऑफ अ फीमर बोन, कि एक ह्यूमन ने देखा कि दूसरा ह्यूमन बीइंग की फीमर इंजर हो गई थी और वो रुका रहा उसके हीलिंग के लिए। तो जब इंसान साथ आए, जब हमारी बॉन्डिंग डेवलप हुई, हम एक दूसरे के लिए केयर करना शुरू किया, उस वक्त ह्यूमन ने वो फर्स्ट स्टेप उठाया जहां से हम प्लेनेट के मास्टर बन गए। सो दैट स्मॉल थिंग, हीलिंग ऑफ अ फीमर बोन, दैट मेड अस मास्टर ऑफ द प्लेनेट। अब देखो ये स्मॉल थिंग और मास्टर ऑफ द प्लेनेट कितने बढ़िया ऐसे के टॉपिक से रेजोनेट कर रहा है कि एवरीथिंग हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंस हैज बिगन्स फ्रॉम अ सिंपल आइडिया। तो एग्जामिनर जब वो पढ़ेगा तो वो खुश हो जाएगा कि ठीक है, बच्चे को बात समझ में आई, वो हर एंगल से सब्सटैंशिएट कर पा रहा है। ठीक है। अब इसमें मैं सर को क्रेडिट देना चाहूंगा कि सर और मैं बैठ के हम लोग खूब सारे पीवाईक्यूज को डेलिब्रेट करते थे। सर ऐसे के टॉपिक देते थे अपने टेस्ट सीरीज से, उसमें हम हर टॉपिक को डेलिब्रेट करते थे कि इसमें क्या एनेक्डोट डाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन डाल सकते हैं। और ये जो भी मैं एनेक्डोट आपको बता रहा हूँ, बीट गांधी जी, सॉल्ट मार्च और हीलिंग ऑफ फीमेल, ऑल ऑफ देम वेर फ्रॉम माई नोट्स, और सबको मैंने प्रैक्टिस किया था। और बिफोर एग्जाम आई यूज टू हैव लॉट ऑफ एंजाइटी कि मैं क्या लिखूंगा। मैं सर को रेगुलर बोलता था कि सर मुझे एनेक्डोट का बहुत डर लग रहा है, एग्जाम के टाइम मुझे मिलेगा कि नहीं। पर उस दिन मुझे इतने एनेक्डोट मिल रहे थे कि मैं कंफ्यूज था कौन सी लिखूं। सो वो था। फिर सर ने हमें एक बहुत अच्छा सा सिखाया था, देखो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस पेपर विल बी इवैल्यूएटेड लार्जली बाय इंग्लिश प्रोफेसर, जितना मुझे पता है, अदरवाइज यूपीएससी का किसी को नहीं पता, बट टू द एक्सटेंट आई नो। सो सर ने एक हमें बड़ा अच्छा सिखाया था कि आप ऐसे के टॉपिक के फिगर ऑफ स्पीच को डिकोड करो कि सिमिली है या मेटाफर है या जक्स्टापोजिशन है, वो किस तरह से बातें कर रहा है। ठीक है, कि दिस थिंग इज लाइक दैट अगर आता है तो मतलब वो दो चीजों के बीच में सिमिली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर एक था ना कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगन अनलेस, तो थिंकिंग इज लाइक अ गेम, तो गेम और थिंकिंग के बीच वो सिमिली ड्रॉ कर रहे हैं। सो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो एक एनेक्डोट लिखने के बाद कि इन दिस गिवन टॉपिक द टॉपिक पोर्ट्रेज सिमिली बिटवीन गेम एंड थिंकिंग, एट द सेम टाइम इट पोर्ट्रेज जक्स्टापोजिशन बिटवीन दिस एंड दैट। तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको कुछ बहुत नया कंटेंट मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज थी जो मैं सोच भी नहीं सकता था, थैंक्स टू सर कि मैं सीख पाया ये चीज। और फिर हमने उतने ही पीवाईक्यू में और सर के टॉपिक में उसको प्रैक्टिस किया। और वैसे ही सर ने हमें बहुत सारे वो स्टार्ट और कंक्लूजन का टेम्पलेट दिया था कि आप ऐसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, इस टाइप के ऐसे में ऐसा कंक्लूड कर सकते हो। तो वो हमने बहुत प्रैक्टिस किया था और बहुत अच्छी अच्छी कंक्लूजन थी हमारे पास। और सिमिलरली जो बेस्ट चीज सर ने हमारे साथ किया, जो जिसके लिए मैं हमेशा याद रखूंगा सर को, कि एग्जाम से एक दिन पहले सर ने हमें बोला कि आज तुम्हारा टेस्ट है, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले 1.5 घंटे का टाइम है, एक मैं रैंडम टॉपिक दूंगा, 1.5 घंटे लिखना। और वो जूम मीटिंग पे थी, हम सबका कैमरा ऑन था और सब चुपचाप 1.5 घंटे में हमने लिखा है वो टॉपिक। तो उस दिन मैं सोच रहा था कि यार क्यों ऐसे में टाइम बर्बाद करें, ऐसे तो वैसे भी लिख ही लेंगे, चलो लेट मी फोकस ऑन GS 1 2 इंस्टेड। बट फिर भी मैंने वो 1.5 घंटा दिया, लिखा। और उस दिन मुझे अपने पिटफॉल समझ में आया कि चलो मैं ऐसे तो बहुत अच्छे लिख रहा हूँ, बट प्रोबेबली आई एम बिट स्लो। सो एग्जाम के दिन मुझे थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, आर्गुमेंट थोड़े अच्छे से सोचने पड़ेंगे। तो उस दिन जब 1.5 घंटे में समहाउ स्ट्रगल करते हुए फिनिश किया, तो नेक्स्ट डे मैं पहले से प्रिपेयर्ड था कि क्या करना है। सो वो जो बोलते हैं कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वार। सो उसके लिए मैं सर को जेन्युइनली ग्रेटफुल रहूंगा। मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले प्रैक्टिस करना और एग्जाम से एक दिन पहले प्रैक्टिस करना बहुत अलग अलग चीज़ है। सो ऑन द एग्जाम डे आई रोट अ रियली ब्रिलियंट ऐसे, बट वो ब्रिलियंट ऐसे 1.5 घंटे में नहीं हो पाता हैड इट नॉट बीन द नज आई हैड रिसीव्ड अ डे अर्लियर। तो उस दिन मुझे इस बात की रियलाइजेशन थी कि यार बहुत फास्ट लिखना है मुझे, अच्छा तो मैं लिख लूंगा पर फास्ट रहना है। तो वो मैंने बहुत आर्गुमेंटेटिव वगैरह लिखा, पर टाइम लिमिट के अंदर लिखा। सो उसके लिए मैं सर को बहुत थैंकफुल हूँ। सो दैट वाज फॉर द ऐसे पार्ट। So, apart from essay, you have also got good marks in the interview, Vidyanshu. Mhm. ऐसा था। सो इंटरव्यू इज समथिंग आई एम वेरी कीनली इंटरेस्टेड इन। सो माय फर्स्ट इंटरव्यू CSE 22 आई गॉट 184 मार्क्स। आई गॉट इनटू डायनिक्स, तो वो मार्क्स ने ही मेरी एंट्री करवाई थी सर्विस में। देन इन फॉरेस्ट सर्विस 2022 आई गॉट 201, एंड इन दैट इंटरव्यू आई डिड नॉट नो लाइक 60% ऑफ द क्वेश्चंस दैट डे। वो फॉरेस्ट का इंटरव्यू था, द मेंबर वेंट इनटू बॉटनी जूलॉजी, मोस्टली आई वाज ब्लैंक दैट टाइम। ठीक है। और माय कॉलेज इज फ्रॉम साउथ इंडिया, सो VIT वेलोर टू बी प्रिसाइज। तो 2 मेंबर साउथ इंडिया के थे उसमें, और फॉरेस्ट सर्विस में 4 ही लोग होते हैं, चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर्स। सो 3 मेंबर में से 2 साउथ के निकल गए, और दोनों साउथ में ऐसा घुसे, केरला तमिलनाडु दिस दैट में ब्लैंक हो गया बिल्कुल ही। एंड स्टिल आई गॉट 201 मार्क्स इन दैट इंटरव्यू। सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, पीपल आर ऑफन स्कैर्ड ऑफ सुमन शर्मा मैम, शी गेव मी 201 मार्क्स व्हेन आई कुड नॉट आंसर 60% क्वेश्चंस। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर व्हेन आई गॉट 5th रैंक इन फॉरेस्ट सर्विस, इट वाज BB Swincer board, I got 207, and forest is out of 300, so 201 207 were out of 300. And this year it was Sanjay Verma sir board, and I got 193. So interview has played pivotal role every time. So few insights I would like to share. First of all,
लोगों को लगता है कि यार इंटरव्यू के लिए ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया, इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर नहीं आता था, या इस क्वेश्चन में मुझे ये बोल देना चाहिए था, वो नहीं बोला। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटर इसका नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। इट इज नॉट इंटरव्यू, इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू इज अबाउट कि अ, आप कैसे आंसर दे रहे हो, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, इट इज लाइक बार्गेनिंग। पर्सनैलिटी टेस्ट इज दे वांट टू नो हु यू आर एज अ पर्सन। नॉलेज आपकी टेस्ट हो गई है प्रीलिम्स मेंस में, ठीक है। सो नॉलेज का टेस्ट नहीं है। एंड सेकेंडली, इफ यू स्टिल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि मेरे नॉलेज की टेस्ट है, सो ऑलवेज बियर इन माइंड कि वो जो 5 लोग आपके सामने बैठे हैं ना, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री। कोई बात थी कि यूपीएससी ने उनको वहां बैठाया है, और वो आपसे 30 साल पहले इस एग्जाम को क्लियर करके आए हैं, और उसके बाद 30 साल में उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। आप यही हो कि आपने दूसरों से कम बर्बाद आंसर लिखा है, जो मैं सर को बोलता हूँ, मेन्स इज अबाउट राइटिंग लेस हॉरिबल देन अदर्स। तो आपने दूसरों से थोड़ा कम खराब किया है, इसलिए आप वहां बैठे हो। तो आपकी और उनके बीच कोई मैच नहीं है, आप बहुत छोटे बच्चे हो यार, उनके सामने बहुत ही छोटे बच्चे हो। वो अपने लेवल पे आ गए तो पूरे दिन सवाल पूछेंगे, आप आंसर नहीं कर पाओगे। सो नॉलेज का गेम है ही नहीं। अपने वहां पे अहंकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं तो मेंस निकाल के आया, मुझे बहुत पता है। उस अहंकार को अपने पॉकेट में रखो, उस चीज का वो है ही नहीं। वहां पे जब जाओ, बी वेरी हम्बल, बी वेरी काम। और जो मैंने सर को पहले बताया था कि जब मैं वहां गया तो मेरे मन में ऑनेस्टली ग्रेटफुलनेस थी कि यार मैं आज यहाँ आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है इस इंस्टीट्यूशन के प्रति। इतने बड़े लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ, इनके साथ आधे घंटे बिता पा रहा हूँ, मेरे लिए एज ए स्टूडेंट बहुत ऑनर की बात है। और इस बात को जेन्युइनली दिल में रखना अपने, कि आप मॉक इंटरव्यू में भी जब जाओगे ना, बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपसे। कोई इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड होगा, कोई आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, बहुत बड़े लोग हैं यार। आपके लिए बहुत किस्मत की बात है कि आप उनसे बातें कर पा रहे हो आज। तो उस ग्रेटफुलनेस को मन में रखना, उनके लिए वो रिस्पेक्ट आपके मन से झलकनी चाहिए, और वो उनको दिख जाता है कौन रेस्पेक्टफुल है, कौन एरोगेंट है, वो उनको दिख जाता है। मैं सेलेक्टेड हूँ, मेरे से इतने बच्चे बातें करते हैं कि सर क्या पढ़े नहीं पढ़े, मुझे दिख जाता है कि कौन जेन्युइनली मेरी मेरी बात सुनना चाह रहा है, और कौन खुद को ही दिखा रहे कि अरे सर मुझे तो सब आता था, मेरा तो ऐसे ही नहीं निकला। ये वो मुझे भी दिख जाता है ये चीज, ठीक है। तो वहां पर बहुत जेन्युइनली ग्रेटफुल रहना उनके प्रति, ठीक है। और प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोलूंगा कि इंटरव्यू इज मोर अबाउट बीइंग काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, रिलैक्स्ड रहो। हाउ दिस थिंग विल कम फ्रॉम नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज। मतलब मेरे लिए यही था, मैं तो बहुत मॉक देता था, जितने हो सकते देता था। और हर मॉक में मेरा गोल क्लियर होता था कि मुझे बस काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है। फीडबैक रंग बिरंगे मिलते थे, कोई बोलते थे तुम्हारी शर्ट ठीक नहीं है, कोई बोलते थे तुम तेज बोल रहे हो, कोई ऐसा इधर उधर। मैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देता था। आप 10 लोगों से बातें करोगे, 10 तरह के फीडबैक मिलेंगे। माई गोल वॉज क्लियर कि मुझे हर इंटरव्यू में पहले से ज़्यादा काम कॉन्फिडेंट होना है, पहले से ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ बातें करनी है, ठीक। सो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो। टेक 2-3 सेकंड पॉज, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखो, एक तो ना दे आर ओल्ड पीपल, यूजुअली 60-65 एज ग्रुप में, तो वैसे भी वो धीरे बोलते हैं, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो कुछ बोले, चुप हो गए, फिर से कुछ बोलना शुरू कर दिया। वैसे भी क्वेश्चन ध्यान से सुनो, और 2-3 सेकंड पॉज ले लो, क्योंकि हो सकता है उनका क्वेश्चन खत्म ना हुआ हो, वो फिर से कुछ बोलना शुरू कर दे। और अदरवाइज भी इट विल पोर्ट्रे इमेज कि यू आर अ थॉटफुल पर्सन, ऐसे बिना सोचे नहीं बोलता है, थोड़ा सोच समझ के बोलता है। टेक अ पॉज, और फिर दिमाग में थोड़ा आंसर स्ट्रक्चर कर लो कि पॉइंट नंबर 1 दिस, पॉइंट नंबर 2 दिस, पॉइंट नंबर 3 दिस। जैसे मेरी एक हॉबी थी फॉलोइंग इंटरनेशनल मीडिया, तो मैम ने पूछा कि वाई डू यू फॉलो इंटरनेशनल मीडिया, तो मतलब 2-3 मेरे पास बहुत क्लियर से थे, मैम फर्स्ट दिस, सेकंड दिस एंड लास्टली दिस। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड आंसर थोड़े होने चाहिए। और जब बोलो तो आपके बोलने में कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए, और ग्रेविटी भी दिखनी चाहिए कि आप सोच समझ के बोल रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मन में कोई घबराहट नहीं है, जल्दी जल्दी नहीं बोल रहे हो, या कोई एरोगेंस नहीं है, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल, यही सब मैटर करती है। आंसर आंसर नहीं मैटर करता है। मैंने बोला ना, सुमन शर्मा मैम ने मुझे 200 नंबर दे दिए जब मुझे 60% क्वेश्चन नहीं आते थे उस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो आते थे उसको मैंने बहुत अच्छे से बोला, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बहुत मेच्योरिटी से बोला। एक क्वेश्चन और आता है कि एक मेंबर की तरफ देखें या सबकी तरफ देखें। तो यूजुअली आप जिनसे बातें करो आप उनकी तरफ देखो, बट जब भी मैं ऐसा करता था कि जब भी मैं क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट होता था मेरे पास, कोई अच्छी लाइन है, तब मैं एक बार सबकी तरफ देख लेता था, स्पेशली चेयरपर्सन की तरफ जरूर देख लेता था कि सर देखो ये अच्छी वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया। और मॉक टेस्ट आप जितने दोगे ना, तो आपका डेफ एक्सप्लोर होगा, आपसे प्रोबेबल क्वेश्चंस एक्सप्लोर होंगे। प्रेजेंटली आई एम इन फॉरेस्ट सर्विस, हमें एकदम छुट्टी यहाँ नहीं मिल रही थी, जैसे मैं पहले भी बता रहा था। स्टिल जब मैं भी 15-16 मॉक में देखे आ गया दिल्ली, जब भी छुट्टी मिली मैं चला गया मॉक देने। और मैंने क्या किया कि जितने भी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, क्रिएटेड लिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस, उसको कॉपी पे लिख लिया। तो एक हो गया ना कि दीज आर वेरी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम मी। और उस क्वेश्चन को, बिकॉज आई हैड पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम या ड्यू टू ट्रेनिंग, तो आई यूज चैट जीपीटी एंड आई यूज ग्रॉक। वो एक्स का एआई है ना, इलॉन मस्क का ग्रॉक। ग्रॉक इज एक्चुअली बेटर देन चैट जीपीटी, आई रियलाइज्ड।
लेटर ऑन। सो उनको मैंने यूज करके बहुत सारे मॉडल आंसर निकाले। पहले तो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लिया कि मेरे होम स्टेट से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे हॉबी से क्या पूछ रहे हैं, मेरे मार्केट ऐप से क्या पूछ रहे हैं, और सबको मैंने क्या बोलते हैं उस सब पे मैंने नोट्स बना लिए अच्छे से ग्रॉक को यूज करके। तो आप एआई यूज करो, मॉक दो, उसके क्वेश्चन को यूज करो, और इंटरव्यू में ना आप 3-4 क्वेश्चन भी अगर अच्छे दे दिए ना, जिनसे उनका दिल खुश हो गया, तो दैट इज इनफ फॉर फ्रॉम द नॉलेज परस्पेक्टिव। 1/3 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं चलेगा, और कुछ के एवरेज आंसर दे दिए चलेगा। जैसे मैंने बोला कि नॉलेज तो वो चेक ही नहीं कर रहे, पर 3-4 भी अच्छे दे दिए तो वो खुश हो जाते हैं। सो मॉक दे दो, मॉक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और उसके ढंग के आंसर्स बना लो। जैसे मेरी मेरी स्टेट है झारखंड, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता था कि झारखंड क्यों पिछड़ा हुआ है, इतना मिनरल होने के बाद भी क्यों नहीं डेवलपमेंट हुई, बिहार से क्यों अलग हुआ झारखंड, और बिहार से अलग होने के बाद क्या ट्रेजेक्ट्री है बिहार और झारखंड की। तो मैंने ग्रॉक वगैरह को यूज करके बहुत ढंग के आंसर ढूंढ लिए थे। सो उसका तो ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट सर्विस वाज लाइक 2/3 ऑफ माई इंटरव्यू। सो बहुत अच्छे अच्छे आंसर थे, चूंकि मैं ट्रेनिंग में था, बहुत फील्ड विजिट किया, बहुत चीजें समझ में आई। तो ओवरऑल ऐसा हुआ कि 4 में से 3 मेंबर ने मेरे को गुड बोला था इंटरव्यू में। सो दैट वाज वन थिंग आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। और थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा आपकी यूनिक अप्रोच होनी चाहिए जो उनका दिल जीत सके। सो जैसे मेरे चूंकि आई वाज दिस फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, तो हर जगह मेरे से पूछा जाता था, और एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछा गया कि इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, सो हाउ विल यू बैलेंस बिटवीन दिस डेवलपमेंट एंड क्या बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। सो मैं एक आंसर हर जगह बोलता था कि सर लॉर्ड गौतम बुद्ध हैज सेड दैट इन अ कंक्लूसिव विक्ट्री बोथ साइड शुड विन। और जब मैंने ये बात एक्चुअल इंटरव्यू में बोली ना मेंबर को, तो चेयरमैन सर ने बीच में इंटरप्ट करके बोला क्या क्या बोला था उन्होंने, फिर से बताना मुझे। तो फिर मैंने चेयरमैन सर को बोला कि सर गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि इन अ कंक्लूसिव विक्ट्री बोथ साइड शुड विन। उससे वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए। और नेक्स्ट मैडम जो बैठी थी उनकी मेरी पूरी उनके साथ डिस्कशन इसी चीज पे हो गई कि विद्यांशु हाउ विल यू इंश्योर विन विन सिचुएशन इन दिस सिनारियो, कि दोनों साइड की कैसे जीत होगी। सो सर बहुत इंपैक्टेड थे क्योंकि ही इज थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। तो मैंने बोला कि सर देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो देश का होना ही है, पेड़ तो कटेंगे ही, बट द थिंग इज कि यू हैव टू मिटिगेट, कि आप कैंपा फंड यूज कर लो, आप कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन दूसरी जगह पे कराओ, रोड की अलाइनमेंट को चेंज करो, ये सब था। तो वही मैंने बोला कि सर डेवलपमेंट इज इनएविटेबल बट वी हैव टू मिनिमाइज द डैमेज। उन्हीं लाइंस पे मेरे आंसर थे। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, और एक चीज हुई थी कि माय एक्चुअल इंटरव्यू वाज ऑन 11th अप्रैल, बट माय एकेडमी डिड नॉट गिव मी लीव दैट डे बिकॉज हमारे एकेडमी में एग्जाम चल रहा था। सो इट हैड टू बी रीशेड्यूल्ड टू 17th अप्रैल। मैंने यूपीएससी को लेटर लिख दिया था, ऑफिशियल मेल की एग्जाम की शेड्यूल लगा दी थी, सो दे रीशेड्यूल्ड इट। सो एट द एंड ऑफ माय इंटरव्यू एक्चुअली अपोलोजाइज टू द बोर्ड कि सर आई एम वेरी सॉरी कि बिकॉज ऑफ मी द यूपीएससी हैड टू टेक अननेसेसरी पेन्स टू रीऑर्गेनाइज। मेरे लिए वो बोर्ड अलग से बैठी थी, आई वाज द ओनली पर्सन इन दैट बोर्ड, और कोई था भी नहीं। So I actually apologize to sir clearly कि sir I'm very sorry for the inconvenience I have caused to the commission। तो सर सेट कि अबाउट व्हाट, तो मैंने बोला कि सर मेरी इंटरव्यू रीशेड्यूल हुई क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो सर बोले कि कोई बात नहीं बेटा, हमारा तो यही काम है। तो ठीक है, आई वाज, शायद उनको भी ये बात अच्छी लगी होगी कि ये अपने मिस्टेक भी एडमिट करता है वगैरह। और जैसा मैंने सर को प्रीवियसली बताया था कि वाइल लीविंग आई टोल्ड देम कि सर आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन, कि मैं एक अच्छा इंसान बन पाया, लर्नड इंसान बना, अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली, करेज सीखा, परसीवरेंस सीखा। इस देश के फाइनेस्ट लोग मेरे आज फ्रेंड हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो जस्ट बी ऑनेस्ट देयर, वहाँ उनको मक्खन नहीं लगाना, मैं वहाँ मक्खन लगाने नहीं गया था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और मैं जेन्युइनली उस इंस्टीट्यूशन को ग्रेटफुल था। तो मैंने जेन्युइनली अपनी ग्रेटफुलनेस वहाँ एक्सप्रेस की। और ये सब बातें बोलो ना बोलो इंटरव्यू के दिन, वो जेन्युइनली ग्रेटफुल रहना कि आप बहुत अच्छे लोगों से बातें कर रहे हो, उनके लिए आप छोटे से बच्चे हो। आंसर नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ठीक, तो बस इसी एटीट्यूड के साथ, जो मैं नहीं ये सब बोलूंगा कि ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, आप मेंस निकाल के आए हो तो आपको वो बातें पता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, इफ सर वांट्स टू ऐड समथिंग। I would just say this, it has been quite an elaborate session from your side, Vidyanshu, starting from your journey, starting from the failures that you faced in prelims till the final interview that you gave that got you All India rank 59. I think it has been quite exhaustive, quite elaborate, quite insightful for the students who will be watching this online. एंड जितने ग्रेटफुल आप हो हर किसी के लिए जिन्होंने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, आई वुड आल्सो से दिस कि द स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू मेक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड शेयर योर लर्निंग्स, जिसका फायदा स्टूडेंट्स को डेफिनेटली होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस विद्यांशु एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर। आई होप आई एम एबल टू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। ठीक है।
या जी दैट एक्चुअली दिस मैटर्स अ लॉट। आप क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन खत्म हो गई है, अभी तो आप प्रोसेस में गए हो, राइट? अब सोसाइटी के साथ आपका असली इंटरेक्शन शुरू होगा, और यस यस जिस जिस ग्रेटिट्यूड के साथ आप चल रहे हो, सोसाइटी को भी आप इसी तरीके से गिव बैक करोगे, ये मेरी पूरी आशा है। एंड आपके आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, wish you a very successful and bright future in the administrative setup as an IS officer. Thanks a lot, Vidyanshu. तो आपको भी सर मेरी साइड से जो भी आपने इनिशिएटिव उठाया यूपीएससी मित्र का, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए, बेस्ट विशेस। ठीक है। और Thank you. Thanks a lot. आई होप स्टूडेंट कम्युनिटी का भला होता रहे आपसे। थैंक यू Thanks सर। a lot. Thanks a lot. Sure, Vidyanshu. ओके, चलिए।